Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to complete the question answer section of our chapter number 6. Okay, so come with me and let's start completing the chapter number 6 question answer. Okay, so first of all, what we need to do? Choose the correct option to complete the sentence. Okay, the poet considered his country even better than heaven. Okay, then the boundaries are made by man. India is called the dash of religion. India is called the mother of religions. Okay. The poet considered himself holy to be born in India. Okay. Now complete the lines from the poem. So students, ये जो पूरी line दी है ना, ये poem का एक stanza है. आपको इसको complete करना है, ठीक है? तो ये है stanza, ये वाला देखिए. But with unfound boundless love, I behold the borderland of my India expanding into the world. Hail mother of religions, lotus, scenic beauty and sages. The wide doors are open, welcoming God's true sons through all ages. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, चलिए. Now see which lines from the poem convey the same meaning as the following. ये जो 4 meanings यहाँ पे दिए हुए आपको ये बताना है कि इनसे रिलेटेड कौन से हमारे लाइन्स हैं इन पोएम्स में. ठीक है, सी का पहला है, देखिए द पोएट वांट्स टू स्प्रेड लव ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो कौन सी लाइन है इसमें, देखिए. सो सी का पहला है, देखिए सी का पहला है, सी का आई behold the borderland of my country expanding into the world. ओके, दिस इज योर वन. सी का पहला है. दूसरा क्या है, द मैन हैज डिवाइडेड द नेशन विथ कोल्ड फीलिंग्स. ठीक है, तो सी का 2 देखिए क्या है, सी का 2. मैन मेड कन्फाइनिंग कंट्रीज एंड देयर फैंसी फ्रोजन बिल्डिंग्स. ओके, दिस इज योर आंसर नंबर 2 ऑफ सी. Now third, the poet wants people across the world to come to his country. ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, देखिए. थर्ड, the wide doors are open, welcoming God's true sons through all ages. Okay, where Ganga wood Himalayan calves and man dreams. Okay, ये आपका सी का थर्ड है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए. पोएट feels respected on the holy land. ठीक है, तो फोर्थ का आंसर ये वाला लास्ट वाली लाइन है आपकी, देखिए. ये फोर्थ का, सी का फोर्थ है ये. गॉड आई एम हॉलोड, माई बॉडी टच्ड दैट सॉड. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखिए. पहला है, हाउ डज द पोएट एड्रेस इंडिया इन द ओपनिंग लाइन. इस पोएम के स्टार्टिंग के ओपनिंग लाइंस में पोएट ने इंडिया को किससे कंपेयर किया है. ठीक है, तो डी का पहला है स्टूडेंट्स, देखिए इसका आंसर. डी का पहला है, आवर कंट्री इंडिया इज बेटर देन. ओके, आवर, द पोएट इज कंपेयरिंग इंडिया विथ हेवन और अर्काडिया. ओके, according to poets, our country India is much better than any heaven or Arcadia. This is your answer number 1, D का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी का क्या है. How does the poet want to give, what does the poet want to give to other countries. ठीक है, पोएट क्या देना चाहते हैं दूसरे कंट्रीज को. ओके, द पोएट वांटेड टू गिव टू अदर कंट्रीज आर, डी का सेकेंड है, देखिए. ओके, ये डी का सेकेंड है, अनफाउंड बाउंडलेस लव. डी का सेकेंड है ये. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. How does the earth made by God differ from the earth made by man? Yes, there is a lot of difference between earth made by God and earth made by man. Okay, God made a whole earth without any limitation, without any boundary. Okay, but man on the another hand side created countries along with their border. Okay, फोर्थ वन, why is India famous all over the world? ठीक है, इंडिया वर्ल्ड में क्यों फेमस है. इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज, फोर्थ का आंसर है ये, because India is known as the mother of religion. Okay, because from our country's land many religions took birth, like Jainism, Buddhism. Okay, and here we also have a lot of ancient cities and holy cities like Varanasi, Haridwar, etc. and etc. Okay, so इस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या है, बिल्कुल अलग है. ठीक है, चलिए फिफ्थ वन, हाउ डज द पोएट फील टू बी बोर्न इन इंडिया. ओके, सो द पोएट feels, okay, the poet feels holy that he took birth in the land of India. Okay, appreciating the poem,
India is a land of diversity. It welcomes everyone with open arms. Write a short note of about 80 words expanding on this thought. So students, हमारी कंट्री इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया सबका स्वागत करती है. आप लोगों को इस सेंटेंस को 80 वर्ड्स में प्रूफ करना है, वो आपके थॉट्स होने चाहिए. Why is India considered a holy land? Explain with suitable example. हमारी कंट्री इंडिया को होली लैंड क्यों कहा जाता है? वैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, इसमें आप और अपने थॉट्स को इंक्लूड करके बताएंगे. What feelings come to your mind after reading the poem? Do you relate yourself with the poet? अच्छा ये बताइए, इस पूरे पोएम को पढ़ने के बाद कौन सी फीलिंग आपके माइंड में आती है? ठीक है, प्राउड होते हो, प्राउड फील करते हो आप कि हमारी कंट्री इंडिया का हिस्ट्री इतना रिच है. ठीक है, तो किस तरीके से आप लोग इस पोएम से खुद को जोड़ सकते हो. ठीक है, चलिए. स्पीकिंग एंड लिसनिंग. वर्क इन अ ग्रुप टू प्रिपेयर अ स्किट बेस्ड ऑन एनी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स. आप लोगों को एक स्किट परफॉर्म करना है. ठीक है, ये एक ड्रामा का छोटा सा पार्ट होता है. आप लोगों को उस स्किट में हिस्टोरिकल इवेंट्स को शो करना है, जैसे कि आप दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग, वैसाखरे, स्वदेशी मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी एक लेकर आप स्किट परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, स्किट परफॉर्म करना है, ड्रामा है तो कैरेक्टर्स होंगे, डायलॉग्स भी आपको लिखना है. तो यहाँ पे ये कुछ टिप्स आपको दिए हुए हैं, इन्हीं के बेसिस पे आप ये स्किट परफॉर्म करेंगे. Listen to your teacher as she tells you about some well-known religious reformers of ancient India. So students, अगर religious reformers की अगर आप बात करते हो ancient India से, ठीक है, वराहमिहिर थे हमारे, ठीक है, भास्कराचार्य, तो ये सारे लोग जो है ना, ये साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, ये एस्ट्रोनॉमी से भी रिलेटेड लोग थे, और साथ ही साथ इन लोगों ने हमारे एंशियंट इंडिया की सोसाइटी को सही करने का भी काम किया है. ठीक है, इनके अलावा और आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हो, ये आपका काम है. ठीक है, चलिए. राइट. A soldier is a patriot who loves and respects his country and willingly sacrifices his love to protect it. Does that mean only soldier and freedom fighters are patriot? Can you also be a patriot? How? Write an article explaining the ways to show your love and respect for your country. So students, आप लोगों को एक आर्टिकल लिखना है, वर्ड लिमिट होगी 100 से 200 वर्ड्स की. इसमें आप शो करोगे कि आप कितना अपने कंट्री को प्यार करते हो, रिस्पेक्ट देते हो. ठीक है, क्योंकि हम लोग सोल्जर्स को मानते हैं कि जो सोल्जर्स हमारे फ्रीडम फाइटर वही से पेट्रियट्स होते हैं. क्या आप पेट्रियट नहीं हो? क्या मैं पेट्रियट नहीं हूं? बिल्कुल है, लेकिन हम कैसे हैं और क्यों है, ये आपको लिखना है. ठीक है, आर्टिकल के फॉर्म में. टेक अ क्वाइट मोमेंट from your daily routine to pray, think or reflect upon your actions that show your behavior towards your country. Engage with people from diverse backgrounds and try to imbibe their culture in support of unity. So students, देखिए, हमारी कंट्री इंडिया को यूनिटी का लैंड भी कहा जाता है. तो दिन में कुछ टाइम आप अपने लिए निकालिए और खुद की एक्टिविटीज पे आप नजर रखिए. ठीक है, और अब आप ये देखिए कि जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो तो क्या सच में आप यूनिटी को सपोर्ट करते हो कंट्री के रिगार्डिंग. ठीक है, और आपको क्या करना है, इस चीज को और ज्यादा अच्छे से प्रूफ करने के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से आपको बातचीत भी करनी होगी. ठीक है. So students, this is all about our chapter number 6. Okay, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.